ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ସୁଶ୍ରୀ ଗୁରୁମା ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏଇ ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ା ପାଠକୁ। ଗତ ଭିଡ଼ିଓରେ ବା ଗତ ଆମର କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଜାତୀୟ ଜୀବନର ଭାଗ 1ରେ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ, ଆଲୋଚନା ଆଗରୁ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖକ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଠ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ପାଠରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଜାତୀୟ ଭାବନାରେ ସମୃଦ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ ବୋଲି ଜାପାନ ଜାତିର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଏଠି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଜାପାନୀ ଜାତି ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଜାପାନ ଜାତିର ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଏଠି ଲେଖକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜାତିର ମାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଜାପାନ ଜାତି କିଭଳି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ତ୍ୟାଗ କରୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ଏଠି ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଛେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟିଏ ଦେଖିବା ଆମେ ଏଠି ଉଦାହରଣ, ଆଜି ଆମେ ଏଇଠୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାର ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟେ ଜାପାନର ଉଦାହରଣ ଦିଆହେଇଛି। ଦେଖ ସମସ୍ତେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାରାଗ୍ରାଫ ଏଠି ପୃଷ୍ଠା ନମ୍ବର 49 ପୃଷ୍ଠାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାରାଗ୍ରାଫ ଦେଖ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଜାପାନୀ ଜାତି ଟଙ୍କା କରଜ ନେବାକୁ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଲା ମାତ୍ରେ ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟ ଜାତି ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏଥିର କାରଣ ଜଗତର ଚକ୍ଷୁରେ ଜାପାନ ଜାତିର ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ୁଅଛି। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ, ଯେମିତି ଜାପାନକୁ ଆଜି କାହିଁକି ସମସ୍ତେ ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ବା ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି? କାରଣ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ, ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଜାପାନର ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି। ସେ ଦେଶ ଛୋଟିଆ କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ଉନ୍ନତ। ଯେହେତୁ ସେ ଉନ୍ନତ, ତେଣୁ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସଭ୍ୟ ଦେଶମାନେ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛୁ, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ, କୌଣସି ଜାତି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ ହୋଇଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ଜାତିର ଉନ୍ନତି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆତ୍ମତ୍ୟାଗର ସୁଫଳରୁ ଜାପାନୀ ଜାତି ସମୃଦ୍ଧ ଓ ସମୁନ୍ନତ ହୋଇପାରିଛି, ଏହା ଏଠି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖକ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ଗଠିତ ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ହେବ ଓ ତେତେବେଳେ ଜାତୀୟ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିବାକୁ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାତି ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବଳି ଦେବାକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଜୀବନ, ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ ଯାଇକି ସେ ଜାତି ନିମନ୍ତେ ଜାତିର ଉନ୍ନତି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ଗୋଟିଏ କୁକୁରକୁ ଆଦର ସହିତ ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଉଦାହରଣ ଏଠି ଦେଇଛନ୍ତି ଲେଖକ। ତାକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ବିଲୁଆ ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବ ସେ ବିଲୁଆଟି ଖିଙ୍କାରି ହେଲା ମାତ୍ରକେ ଦେଶୀ କୁକୁରଟି ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ଗୁଞ୍ଜି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଳାଇ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ଡାହାଳ କୁକୁର ଛୁଆ ଆଣନ୍ତୁ, ତାକୁ ଗୋଟିଏ ବାଘ ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଯେ ଡାହାଳ ଛୁଆଟି ନିର୍ଭୟ ଭାବରେ ମହାବଳ ବାଘ ଆଡ଼କୁ ଝପଟି ଯିବ। ଏଠି ଦୁଇଟି ଯେଉଁ କୁକୁର କଥା ଆଉ ବିଲୁଆ କଥାର ଉଦାହରଣ ଦିଆହେଇଛି, ତାର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଜଣେ ଗୋଟିଏ ଜାତିର ସାହସିକତାକୁ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି। ସାହସିକତା କିଭଳି ସେ ଭିତରେ ଏଠି ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଲେଖକ। ଦେଶୀ କୁକୁରକୁ ଆମେ ଯତ୍ନର ସହିତ ପାଳି ଯେତେ ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଲୁଆଟିଏ ଦେଖିଲେ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ଗୁଞ୍ଜି ପଳାୟନ କରୁ, କାରଣ ସେ ସ୍ୱଭାବରେ ଭୀରୁ। ଜାତୀୟ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ସେ ଜାଣେ ନାହିଁ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର ମାୟା ବନ୍ଧନରେ ସେ ଆବଦ୍ଧ। ଯେହେତୁ ଆମେ ତାକୁ ଘରେ ରଖି ପାଳି ପୋଷିକି ଗୋଟିଏ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ସେ ରହିଲା, ତାର ଯେଉଁ ସାହସିକତା ଗୁଣଟି, ସେ ସାହସିକତା ଗୁଣଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିଯାଇଛି। ସେ ନିର୍ଭୟରେ ମହାବଳ ବାଘର ସମ୍ମୁଖକୁ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରି ତା ଜାତିର ସ୍ୱାଭିମାନ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜାଣିକି ସେ ସ୍ୱୀକାର କରି ନିଜର ବୀରତ୍ୱ ଓ ସାହସିକତାର ପରିଚୟ ଦେଇଥାଏ। କାରଣ କାପୁରୁଷତା ଡାହାଳ କୁକୁରଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ଏଠି ଦେଶୀ କୁକୁର ଓ ଡାହାଳ କୁକୁରରୁ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ ଏତିକି, ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ସାହସିକତା ଗୁଣ ରହିଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ଭୀରୁ ବା କାପୁରୁଷପଣିଆ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ଡାହାଳ କୁକୁର ଛୁଆଟି କଥା କହିପାରୁଥାନ୍ତା, ତାର ଅସୀମ ସାହସିକତା କାର୍ଯ୍ୟର କାରଣ ଆପଣ ତାକୁ ପଚାରିଲେ ସେହିପରି ଜବାବ ଦିଅନ୍ତା। ୟା ଦ୍ୱାରା ଏଠି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ଆମେ ଯଦି ତ୍ୟାଗ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାର୍ଥ, ସେ ସ୍ୱାର୍ଥଟା ଆପେ ଆପେ ଚାଲିଯିବ ଆଉ ତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ କିଛି କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିବା।
आपे आपे जेते बाधाविघ्न आसिले सुद्धा आमे ताकु सहजरे अतिक्रम करिपारिबा। ता द्वारा निजर जातिर उन्नति सहित आपे आपे निजर मध्य उन्नति हेबो। तापर पैराग्राफ को देखो पिले, मु जाने जे महाबल बाघ को आक्रमण करने को जाई मु से बाघ हाथ में मरिबी, किंतु मो जातिर गुण साहसिकता। मु मोर जीवन प्रति माया रखी बाघ निकट को न गले मो जातिर मान और मूल्य कमिଯିव। ठीक व्यक्तिगत जीवन को केमिति जलांजलि देबा से विषय ये लेखक कहते। महाबल बाघ को आक्रमण करने को गले निश्चित अर्थात कौन सी पराक्रम अधिक निज ठारू पराक्रमशाली निज ठारू साहस अधिक थिबा जन सहित जदि आम प्रतिद्वंदी होगा जावा ताहले से आम निश्चित भाव में मोर क्षति ही हम, किंतु क्षति हेले सुद्धा जातिर उन्नति जातिर मान वृद्धि करने साहसिकता गुण प्रदर्शन करवा एटा सबुठारु जाति प्रति गोटे उत्तम व आदर्शर भावना सृष्टि करे। सेथिलागि निज जीवन को विपद थिले सुद्धा जदि से साहसिकता गुणटी व्यक्ति देखाए ताहले ता पाखरे से जातीय उद्देश्य किछि करिवार भावना मनरे सृष्टि होता है। तेणुकरी इठी कहे जदि मु मरे पछके किंतु डाहल कुकुरर दाम मोर साहसिकता द्वारा बढ़िबो एथिरे संदेह नाही। ए दीटी जो उदाहरण दिहला गोटे हला डाहल कुकुर और देशी कुकुर से भितर तुम मैंने जानी पार्थुओ कहा पाखरे साहसिकता गुणटी अधिक अच्छी। कहा पाखरे साहसिकता गुण अच्छी डाहल कुकुर पाखरे निश्चित भाव में साहसिकता गुण रही। यही उदाहरण कहवा उद्देश्य है समस्ते कार्य कला बेले थरे भाविबा उचित मु जो कार्य करे ता द्वारा मो जातिर मान बढ़ुची कि नहीं। जदि मु किछि खराब काम करुछि ता द्वारा मो जातिर मान सम्मान रे निश्चित आंच आसीबो। एहा आमे जानिकी ता द्वारा किछि करिया पूर्व भाविबा प्रथम दरकार। जेबे मते जने कुवाक्य कहे और मु जेबे जानि पारि जे मु सेई कुवाक्य रे प्रत्युत्तर न देई चुप रहिले मो जातिर मान बढ़िबो और मो जातिर गंभीरता बढ़िबो ताहले एपरि स्थल रे मोर नीरव रहिबा एकांत आवश्यक। आमे निजर पारदर्शिता पणे देखिबा को जाई अन्य आगरे जदी किछि कहिबा ता द्वारा निजर बहादुरी देखाइबा द्वारा किछि जातिर उद्देश्य रे बा सम्मान रे आंच आसे ताहले सेठी निजर अधिक पणे निजर ज्ञान निजर पराक्रम साहसिकता देखाइबाटा ठीक हेबो नाही। ए स्थल रे निजे चुप रहिबा द्वारा सम्मान अधिक बढ़िबो जातिर सम्मान बढ़िबो। जदिओ व्यक्तिर सेठी पारदर्शिता देखा जाई परिबनी तथापि जातिर सम्मान बढ़िबो ताहले से जगह आम चुप रहिबाटा ठीक हेबो बोली लेखक कहवा उद्देश्य। बर्तमान आउ गोटे उदाहरण ये लेखक देइछन्ती तुमने एथि जानि पारथिबो जो जापान जातिर उन्नति पाई बोली जापान जाति केते दूर निजको प्रस्तुत करिछि निजको निजर स्वार्थ को त्याग करिछि जातिर उद्देश्य रे जीवन देवा को प्रस्तुत से विषय आम जानि पारले। आउ गोटे उत्तम आदर्श कथा ये लेखक चिंता करछन्ती से विषय वर्णना करछन्ती। देखो ये तुमको बहुत जिनस आम शिखिबार अछि। आम प्रकृति को देखुचे प्रकृतिर बहुत जिनस आम पाई बोली अनुकरणीय तेणु से गुणटा आमर दरकार। दोष गुण देखिबा संबंध रे मोर वक्तव्य एही जे जोड़ी आखिरु गोटे आखि बंद कर और गोटे आखि खोला रख। बंद आखिरे अन्य जातिंकर गुण अन्य जातिंकर दोष देख खोला आखिरे सेमानकर गुण गुड़ी को निरीक्षण कर और से गुण गुड़ी को शिक्षा कर। एटा प्रत्येक मनुष्यर शिखिबार अछि। प्रत्येक मनुष्य को आजिर जो जुगरे वर्तमान सामाजिक आमर समाज रे चली दुर्नीति से सब आमर बहुत जिनस ग्रहण करवा दरकार। भगवान मनुष्य को दुईटी आखि देइछन्ती दुई आखि भितरु कहिबार उद्देश्य है गोटे आखि बंद कर आ गोटे आखि खोला रख। बंद आखिरे अन्यर दोष को देखिबा अन्य व्यक्तिर आम दोष को देखिबा अर्थात आम जदि आखि बंद करवा ताहले अन्यर दोष गुड़ी को आमको देखा जीव नाही अर्थात ताको आम ग्रहण करवा नाही। तेणु बंद आखिरे दोष गुड़ी को देखिबा कहिबार यह उद्देश्य। खोला आखिरे अन्य मानकर गुण को निरीक्षण कर अर्थात खोला आखिरे आमे अन्यर गुण को से आदर्श को ग्रहण करवा से आदर्श को नहीं
आमे आमर जीवन रे ताकू प्रयोग करिबा। ता द्वारा अन्यर भल गुण को शिक्षा करिबा। अन्यर भल गुण द्वारा आमे समाज रो किछि उन्नति मध्ये करि परिबा। तेणु गुण और दोष विषय एठी लेखकंकर वर्णना हेछि। गुण और दोष विषय जो प्रभेदटा एठी आलोचना हेछि। गुणर विपरीत दोष तो माने आगुरु जानिछ। जदि भी जानिन गुण होछि गुणर विपरीत होला दोष। गुण अर्थात सुउत्य भल उत्य आउ दोष होला खराब। तेणु गुण गुडी को सब बेले आमे ग्रहण करिबा शिखिबा। गुण गुडी को आमे शिक्षा करिबा। सबु व्यक्ति और सबु जाति ठारे अनुकरण करने योग्य अनेक गुड़िए गुण अच्छी। एमती ना मनीष जो सृष्टि करिसेंती भगवान से सृष्टि मध्य प्रत्येक जीवन किसी महत्व रही। छोट ठारू आरंभ करी बड़ पर्यंत प्रत्येक वस्तु प्रत्येक जीवर प्रकृतिर समस्त बहुत जिनस आमर ग्रहणीय गुण अच्छी। सबु व्यक्ति और सबु जाति ठारे अनुकरण करने योग्य अनेक गुण अच्छी। जेमिति सूर्य निर्विकार भाव समस्त ठारे किरण वितरण करुछंती। समुद्र लुण पानी रे मिश्री सर्बत रे नर्दमा रे सबुठारे तांको किरण पड़ुछि। किंतु आपण माने देखंतु जे सूर्यंकर किरण विशुद्ध जल तक टाणी निए और सेही गुड़िक पुनर्बार पृथ्वी रे सेचन करे। एथिरो आम्भे माने एही महाशिक्षा पाउछु जे सबुठारे दोष तक त्याग करी गुण गुड़िक ग्रहण कर। या पूर्व आमे जानिले आमको लेखक गोटे उत्तम उदाहरण माध्यम कहते दोष और गुण संपर्क में मान प्रश्न पड़ो दोष गुण संपर्क में लेखक मंतव्य कौन लेखक वक्तव्य कौन। आमको जो दोष गुण संपर्क में लेखक किसी वक्तव्य रखिंट से गोटे उदाहरण है सूर्य समस्त ठारे किरण वितरण कर अर्थात बांटुंट। सूर्य जितेबले प्रकाश आरंभ करुछंती से प्रकाश सूर्यंकर किरण तेजियान किरण प्रकृतिर प्रत्येक वस्तुरे पड़े। जेमिति समुद्रर पानी रे समुद्रर पानी पाटी को कौन लगे लुणिया लगे। सेमिति सर्बत निश्चित भाव में मीठा लगे। से पानी सूर्यंकर से गोटे तांकर किरण किंतु से किरण द्वारा जो आमे बाष्पीभवन कथा तुम मैंने पढ़िछ ता द्वारा समुद्रर पानी लुणिया कहीं लगिला पुणी सर्बत कहीं मीठा लगिला। से सूर्यंकर किरण तो सब स्थान रे पड़े नर्दमार मध्य पड़ुछि किंतु नर्दमार पानीटा विशुद्ध कहीं नुहे। एथिर आमे जानि पारुछु जे सूर्यंकर किरण विशुद्ध जल तक टाणी निए। विशुद्ध जल को से टाणी नौचंती पुणी थरे पृथ्वी ताकू सेचन करती। अर्थात जेते सबू रही विशुद्ध तक बा भल तक से टाणिकी नियंती खराब तक छाड़ी दियंती। अर्थात एथिर आमे जानिले जे आमे समस्ते दोष तक छाड़ी गुण तक ग्रहण करिबा। सूर्यंक ठारू आमर ए महाशिक्षा ग्रहण करिवार अछि। सबुठारे दोष तक त्याग करी गुण गुडी को ग्रहण करिबा ये हला उद्देश्य। तेणु प्रकृतिर प्रत्येक वस्तु आमको शिक्षा करिवार अछि। ये हला आम पई गोटे महान शिक्षा। परिशेष ए संबंध रे मोर वक्तव्य ही कि लेखक एठी आ गोटे कहिबार जाति संपर्क रे जो तांकर उद्देश्य व्यक्तिगत जीवन को बाद दे व्यक्तिगत स्वार्थ को जलांजलि दे जाति उद्देश्य रे जो कार्य करिवार महत्व ताकर उद्देश्य एही पाठ रे रहिछि। से उद्देश्य रे लेखक हमको कहिसंती जे व्यक्तिगत जीवन को बाद दे के आमे सबले जाति उद्देश्य रे करिवा। सेतेबेले को हम जतेबेले विच्छिन्न भाव में ओडिशार विभिन्न अंचल अन्य अन्य राज्य सहित मिसिकी रही सारा ओडिशा को एकत्रीकरण करने मधुबाबूंकर प्रचेष्टा उद्देश्य 1936 मसीहा ठारू जो पूर्व चेष्टा करथिले ता सफल हो नथिला। विभिन्न अंचल ओडिया भाषाभाषी अंचल ओडिया भाषाभाषी विभिन्न अंचल रही तेणु सेमानंकर जो जातीय भावना ओडिशा सहित मिसिबार जो परिकल्पना से परिकल्पना को साकार करने से सारा भारतवासी को भारत को एक बोली मन करथिले। से उद्देश्य रे एठी तांकर किछि वक्तव्य रखिछंती। परिशेष रे संबंध रे मोर वक्तव्य ही कि उत्कल जननी भारत जननी ठारू विच्छिन्न नुहंती। उत्कल जननी भारत जननी से तो जननी किंतु सारा भारत बा भारत होची हमर माँ
उत्कल हूँ तार गोटे अंश बा अंग सदृश जमीती शरीर गोटे शरीर मध्य विभिन्न प्रकार आमर अंग प्रत्यंग रही एठी लेखकों कहवा उद्देश्य भारत जननी गोटे मात्र से उत्कल जननी हूँ गोटे अंश सेमती सारा भारत अनेक राज्य आमर रही प्रत्येक राज्यर होचंदी प्रत्येक राज्य गोटे गोटे जननी अर्थात गोटे गोटे शाखा सदृश तेणु उत्कल जननी भारत जननी ठारू अलग नुहंती से एक और अभिन्न से अंग से शरीर गोटे मात्र अंग परी से भारत जननी सपत्नी किंबा शत्रु नुहंती सपत्नी अर्थ सौतुणी तुम मैंने आगुरी ये पदटा बोधी जान नथिबो सपत्नी है तार अर्थ है सौतुणी इठी आसी सपत्नी शब्दटा व्यवहार होइछि किंतु शत्रु नुहंती भारत जननी ठारू से अलग नुहंती तांकर शत्रु नुहंती भारत जननी 5-6 गोटी पुत्र रही 5-6 गोटी पुत्र कहीं कहला जमीती गोटे मार संतान थांती भिन्न भिन्न संतान थांती से भली एठी जेहेतु भारत जननी गोटे आम शरीर अंश बोली आम जदि कहले सारा भारत रे अनेक राज्य रही प्रत्येक राज्यर जननी भाव जमीती उत्कल हूँ गोटे जननी सेमती अन्य राज्यर समस्ते गोटे गोटे माँ सदृश कहुई प्रत्येक संतान रही अर्थात राज्य उत्कल जमी जननी तार 5-6 गोटी पुत्र बोली एठी कहुई भारत जननी 5-6 गोटी पुत्र से उत्कल हूँ गोटे भिन्न भिन्न शिशु को विभिन्न प्रकार परिचर्या आवश्यक जमती जननी तार विभिन्न संतान से गोटे मात्र जननी अनेक संतान रही था काहाकू कौन भल लगे तार रुचि कौन कार स्वभाव कौन किभली ताकू व्यवहार करिवो ताकू केमती ताकू मन बुझे कि तार सबु प्रकार इच्छा को पूरण करिवो से कथा से ही माँ बा से जननी जानी थाए सेमिति उत्कल जननी बा भारत जननी तार प्रत्येक शिशु को किभली परिचर्या आवश्यक कौन ताकू आमे तोष करिवो किभली से कथा से जननी ही जानी थाए जननी केउ शिशु को क्रोड़े पुराई मधुमय स्नेह चक्षुरे स्तन्यपान कराउछंती केउ शिशु दुष्ट चरित्र को दमन करने पर बेत्राघात करुछंती केउ शिशु को निकट बसाई ताठर परामर्श ग्रहण करुछंती अर्थात एठी कहिबार उद्देश्य हला भिन्न भिन्न स्वभावर भिन्न भिन्न चरित्र भिन्न भिन्न परिवेश रे भिन्न भिन्न शिशु तांकर स्वभाव को परिदर्शन करांती एठी गोटे माँ तार संतान मानक जेहेतु तार प्रकृति को जानी थाए काहाकू किभली शासन करा जाई परिबो काहाकू स्नेह माध्यम रे काहाकू कहिले से बुझिबो काहाकू कार चरित्र को कार दुष्ट चरित्र को दमन करिया पई ताकू टिके शासन करिया को पड़िबो से पई बोली से भली आचरण देखांती अर्थात शिशुर विभिन्न अवस्था जननी भिन्न भिन्न रूप धारण करिथांती तेणु इठी कहिबार उद्देश्य हला भारत जननी उत्कल जननी भारत जननी ठारू भिन्न नुहंती एक और अभिन्न उत्कल जननी प्रत्येक गोटे संतान से भारत जननी गोटे गोटे संतान स्वरूप जो मधुमयी मूर्ति रे जननी शिशु को स्तन्यपान करांती उत्कल जननी आज से स्नेहमयी मूर्ति रे आंभ मानक सम्मुख रे सम्मिलनी मंडप रे उपस्थित होइछंती शिशु जो शिशु को जननी जमती तार स्तन्यपान कराई परिपुष्ट कराए ता स्नेह दे ताकू वर्धित कराए गोटे उत्तम मानव रे परिणत करे से स्नेहमय जननी आज आमर उत्कल जननी आम आगरे दंडायमान किंतु तार विभिन्न अंग प्रत्यंग सबू खंड खंड हो जाइए खंड विखंडित हो जाइए अर्थात विभिन्न स्थान रे से अवहेलित होकर पड़ी रही से जननीर जेहेतु आम संतान ताकू एकत्रीकरण करने आम समस्त को एक हेबाकू पड़िबो आ सेथि लागि दरकार आम पई जातीय भावना जदि आम व्यक्तिगत स्वार्थ कथा चिंता करिबा निज मु काहींकी मोर कौन आवश्यक मुझे द्वारा मोर कौन लाभ हम एभली जदि भावना रखिबा ताहले एभली आमर जो जननी उत्कल जननी से अवहेलित हो रही
आमर ओडिया जातिर जो मान से मान उद्बुद्ध हेबा नाही बा उन्नत हो पारिबो नाही, से अन्य आगरे अवहेलित ही रहिबो। एही मूर्ति भारत मातांकर गोटे मूर्ति विशेष। एही मूर्ति कहबार उद्देश्य कौन? एही मूर्ति क्या बुझाऊँ? एही मूर्ति हूँ उत्कल जननी। तेणु उत्कल मूर्ति बा उत्कल जननी भारत मातांकर गोटे मूर्ति विशेष। एही रूपटी भारत मातांकर गोटे अवतार। जेमिति भगवान एक बा ईश्वर एक और अभिन्न, किंतु ईश्वर को आम विभिन्न रूप में विभिन्न स्वरूप माध्यम पूजा करुचु। विभिन्न धर्मावलंबी से हिंदू हो बा मुसलमान हूँ बा क्रिस्टियन हूँ बा अन्य धर्मावलंबी, से माने से ईश्वर को पूजा करती, किंतु ईश्वर तांको स्वरूप सेमानंकर विश्वास अनुसायी अलग होता। तेणु आम जो ईश्वर को पूजा करूँ से ईश्वर समस्त गोटे मात्र, स्वरूप अलग अलग, अर्थात आम विभिन्न रूप में पूजा करूँ। से ही भली भारत माता हूँ आम समस्ते से भारत माता संतान, किंतु जेहेतु आम प्रादेशिक भावना प्रादेशिक बा अंचल अनुजाई तार अलग अलग स्वरूप रही है। से भली उत्कल हूँ भारत मातांकर गोटे अवतार। एपरी स्थल रे उत्कल भारत मातांकर सपत्नी नुहंती। एठी गोटे दृष्टांत माध्यम लेखक सूचय देवा चाहते जे भारत मातांकर उत्कल माता सपत्नी नुहंती, जेहेतु से गोटे स्वरूप बा अवतार, तांकर अन्य गोटे को मूर्ति, अर्थात से जातीय भावना आमर रहिबा दरकार। आमे जदि उत्कल प्रति आमर प्रीति रहुची, निज राज्य प्रति आमर प्रीति रहुची, निज भाषा प्रति आमर प्रीति रहिबो, एई भावना रहिबा द्वारा एई भावना रे मनुष्य जदि उद्बुद्ध हेबो ताहले समग्र देश पई तार किछि करिवार उद्देश्य सफल हो पारिबो। देश पई तार जो जातीयता भावना रहिबो, जे कोनोसी परिस्थिति रे से विपद सब प्रकार विपद को सम्मुखीन हेबा पई से सफल हो पारिबो बा चेष्टा ता मध्य साहस आपे आपे से लुटि पारिबो। तेणु एथिरो आमर भारत मातांकर जो अन्य एक रूप हूँ उत्कल माता बा उत्कल जननी, से उत्कल जननी उद्धार पाई, से उत्कल जननी को आम पुणी थे एकत्रीकरण करने आम समस्तंकर गोटे महान गोटे कार्य रही। से महान कार्य को साकार करने लेखक समस्त को गोटे मात्र उद्बोधन माध्यम से समस्त को एठी आह्वान करे। जो जातीय जीवन प्रबंध, से जातीय जीवन प्रबंध माध्यम रे सारा राज्यवासी को बा सारा उत्कलियों को से एकाठी करने निश्चित भाव में चेष्टा करिसेंती। से चेष्टार आम सामिल होगा आमर है प्रथम कर्तव्य। पिला माने एथिरे तो माने बुझी पारलो, ए प्रबंधर शेष समय आमको आसी से प्रबंधर शेष में आमको निहाती गोटे कर्तव्य माध्यम आमर लेखक सूचाई आम मध्य निश्चित भाव में जातीय भावना सृष्टि होगा दरकार। से जाति भावना बा जातिगत भेदभाव को भूली जाए आम समस्ते एक होइकी एई उत्कल जननीर उद्धार लगी कार्य करने आवश्यक। ताहा उत्कल सम्मेलन मुख्य उद्देश्य। जो उत्कल सम्मेलन रे लेखक ये उद्बोधन माध्यम तांकर स्वरूप को देइछन्ति, से उद्बोधनर उद्देश्य साकार हो पारिबो। धन्यवाद।